morning to all. Good morning, everyone. Okay, well, so today we are going to learn the chapter The Last Leaf. This is chapter number 7. This chapter is undoubtedly a very inspiring chapter, very inspiring story. We all of us have heard a well known proverb where, yes, I am talking about the proverb, where there is will, there is a way. In Hindi, we can say, Jahan Chah, Wahan Rah. So this proverb really suits, and it is proved here through the story. In this story, there are two characters. Actually, there are three characters, but the main character is Johnsy. Sue and Johnsy both are friends. Sue and Johnsy both are very intimate friends, but accidentally Johnsy fell ill and she comes in depression, we can say, and she starts thinking that she would die very soon. But in the story, in the course of the story, you will come to know only because of her willpower, she recovered herself and she proved that if your willpower is strong, you can achieve everything in your life. So, all the game is of here our willpower. If it is strong, you will succeed. If it is not strong, you cannot succeed. So, willpower must be strong. If it is strong means you can understand you have won the half battle. अगर ये मजबूत है तो समझिए आपने आधी जंग ऐसे ही जीत ली. So always keep your willpower high. So let's start the story. Well, so this is the story, The Last Leaf, and here there are two girls whose names are Sue and Johnsy. Sue and Johnsy, these are two young artists who shared a same flat, and the flat was on the third story of an old house. तो यहाँ पे सू और जॉन्सी दो लड़कियां हैं, दोनों ही यंग आर्टिस्ट हैं और वो रूममेट भी हैं, एक फ्लैट में रहती हैं एंड दैट फ्लैट इज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ स्टोरी में से यहाँ 3 मंजिला, थर्ड स्टोरी में तीसरी मंजिल पे वो रहती है पुराने से घर में. One day Johnsy fell very seriously ill and that was the month of November. Actually, she had been caught by pneumonia. Pneumonia is a type of disease you know very well. And she would lie in her bed without moving. And that is why pneumonia में काफी वो सुस्त हो जाती है और अपने ही बेड पे वो लेटी रहती है ज्यादातर समय. Most of the time she spends in her bed and just gazing out of the window. ठीक उसके बेड के सामने में बगल में एक विंडो है जिसको वो देखते रहती है. Sue, her friend, became very worried. कि जो फ्रेंड सू है वो बहुत ही चिंतित हो जाती है कि ये दिन भर ऐसे ही लेटी रहती है, आखिर इसे क्या हो गया. She sent for the doctor also. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. So she knew very well that she had been suffering from pneumonia. But the matter of concern is here that in spite of the best treatment of the doctor, there was not recovery in the situation of Johnson. And that is why Sue is worried here. So when your willpower is not strong and you are in depression, that time the medicine of the doctor will also not help you, that will also not work for you. One day the doctor told or asked Sue, is anything worrying Johnsy? क्या कोई बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है? Sue replied negatively because she had no any information about that. But she wanted to know why the doctor asked such type of question. Then the doctor replied that it seems that she has already made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने खुद दिमाग में बिठा लिया है कि वो ठीक नहीं होगी. एंड इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प. जैसा मैंने कहा
जब कोई सोच ही ले कि वो ठीक होगी ही नहीं, तो मेडिसिन भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue, being a good friend, always tries to make her friend busy in different work. She talked about clothes, fashions, but Johnsy did not respond. लेकिन जॉन्सी का इस पे कोई असर नहीं होता। वो तरह तरह की बातें करती है ताकि उसको उसका इंटरेस्ट पैदा हो, उसमें वो इन्वॉल्व हो, अपने टाइम को पास करे और इस डिप्रेशन से बाहर आए। लेकिन जॉन्सी का इन सब बातों पे कोई असर नहीं पड़ता। जॉन्सी continued to lie still on her bed and Sue brought her drawing board into Johnsy room and started painting. जॉन्सी अभी भी अपने बेड पे वैसे ही लेटी रहती। तो सू ने क्या किया कि सी ब्राउट पेंटिंग बोर्ड, दोनों ही आर्टिस्ट हैं, तो पेंटिंग बोर्ड को लाकर उसके कमरे में रख देते। वाई? टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। उसे लगा कि ये पेंटिंग बोर्ड देख करके शायद उसका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए। सी विसल्ड वाइल्ड वर्किंग, और उस पे कुछ काम करने लगी बोर्ड पे सीटी बजाते हुए। सडनली Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. While she was doing some work on the painting board, at the same time she heard the whispering of Johnsy. It means she was uttering some words. Slowly, but she was uttering. She ran fast to her bed in order to hear what she was speaking. Then she came to know that she was counting numbers but in backward form. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7, like this. Sue anxiously looked out of the window and she saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. स्यू बहुत ही चिंतित होती है और वो उसी डायरेक्शन में देखती है जहां पे जॉन्सी देख रही हो। तो खिड़की के बाहर उसने क्या देखा कि एक आईवी, एक प्लांट होता है, क्रीपर प्लांट होता है, ये क्रीप करता है, रेंगता हुआ ऊपर चढ़ जाता है, एक क्रीपर प्लांट है, उसी को वो देख रही है और नंबर काउंट कर रही है, लेकिन बैकवर्ड काउंट कर रही है। पहले उसने 12 कहा, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 7, लाइक दिस। एंड इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, एंड बाहर जो है काफी तेज हवा बह रही है, जिसके वजह से उसके पत्ते जो हैं गिर रहे हैं धीरे धीरे करके। टू आस्क्ड हर फ्रेंड वेरी लविंगली, व्हाट इज इट डियर, क्या हुआ? देन जॉन्सी विस्पर्ड, 6, they are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves, there are only 5 left now. जॉन्सी बहुत ही उदास होते हुए कहती है कि देखो, ये बाहर पत्ते बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं, बहुत ही जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले की बात है, इसमें सैकड़ों पत्ते थे, लेकिन आज इसमें सिर्फ 5 पत्ते बचे हुए। सू कहती है कि इट इज ऑटम, ये ऑटम का सीजन है, एंड द लीव्स विल फॉल, सो ऑब्वियसली द लीव्स फॉल इन द ऑटम सीजन। देन जॉन्सी सेज, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, जिस दिन ये अंतिम पत्ता गिर जाएगा उस दिन वो मर जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और वो कहती है कि उसे 3 दिनों से इस बात का पता है। ये बड़े ही नॉनसेंस की बात है कि पेड़ के पत्ते को गिरने से किसी इंसान के जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। Oh, that is nonsense, Sue replied. What have old ivy leaves to do with your getting well? तुम्हारे ठीक होने में इन आईवी के पत्तों का क्या रोल है? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर ने कहा है कि you are going to get better very soon. So don't worry about that. And these leaves cannot decide your life. In return, Johnson did not say anything, and Sue bent and brought her a bowl of soup. फिर सू भी बाहर जाती है और उसके लिए एक सूप, एक बाउल में सूप लेकर आती है। Johnson says that she does not want any soup. She was not hungry. Now there are only 4 leaves left. एक पत्ता और गिर गया और सिर्फ 4 पत्ते बचे हुए। I want to see the last one fall before it gets dark.
देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और वो कहती है कि द लास्ट लीफ वो देखना चाहती है अपनी आंखों से जब वो गिरे, और उसके बाद वो हमेशा के लिए सो जाएगी। इट मीन शी विल डाई। सू सेट ऑन जॉन्सी बेड, kisses her and says, वो प्यार से उसको किस करते हुए कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई माई डियर, तुम मरने नहीं जा रही हो। वाई डू यू थिंक सो? आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. और उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम खिड़की के बाहर देखना बंद करो, तुम्हारे दिमाग में ये क्या बात बैठ गई। जॉन्सी कहती है ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो, फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ। उसके बाद में लास्ट लीफ को देखूंगी। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना ही है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। जैसे ये बेचारे पत्ते अपने पेड़ से गिरकर हमेशा के लिए अपने अस्तित्व को इन्होंने खो दिया, ठीक मुझे भी वैसे ही आराम से अब जाने। सू जो है उसको कहती है कि अब तुम सो जाओ। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बहरमान अप टू बी माई मॉडल। और वो कहती है कि मुझे कुछ पेंट करना है, ओल्ड माइनर को पेंट करना है। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है बहरमैन, ये बहुत बड़े पेंटर हैं। सी रश डाउन बहरमैन एंड लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। और सू वहां दौड़कर उनके पास जाती है। ही वॉज ऑलमोस्ट 60 ईयर ओल्ड पेंटर, 60 साल की उनकी उम्र हो गई है। तो सी इज अ वेरी वेटरन पर्सन वी कैन से। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। इस बूढ़े पेंटर की एक ही इच्छा है कि मरने से पहले वो एक ऐसा पेंटिंग बनाकर जाए कि वो उसका मास्टरपीस हो, लोग जाने के बाद भी उसको याद रखें। लेकिन अभी तक उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। सी poured आउट हर वरीज टू बहरमैन, वो उनको अपनी समस्या बताती है कि जॉन्सी की क्या हालत हो गई और वो इस वजह से काफी चिंतित। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उन्होंने पूछा कि जॉन्सी के माइंड में ये बात कैसे आ गई कि अंतिम पत्ते के साथ ही उसका जीवन खत्म हो जाएगा। शी सेज दैट शी इज स्टूपिड, हाउ कैन शी बी फूलिश, शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट्स यू, शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। वो कहती है पता नहीं उसमें ये बात कहाँ से आ गई, बिल्कुल ही मूर्ख, उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है और वो ना ही कुछ खा रही है ना ही कुछ पी रही है। इस बात से मैं काफी चिंतित। ओके आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी। वो कहते हैं ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलकर जॉन्सी को देखूंगा। दे टिपटोड इनटू द रूम, टिपटोड, टिपटो मतलब चलना धीरे धीरे। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, सी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट। सी ने वहां पे पर्दे जो है खिड़की के पास वो खींच दिए और उसके बाद वो दूसरे रूम में चले। She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper, and it was raining heavily, and icy cold wind was blowing. उसने बाहर झांक कर देखा तो उस क्रीपर में सिर्फ एक ही लास्ट लीफ बचा हुआ है और बहुत तेज की बारिश भी हो रही, ठंडी हवाएं भी बह रही है। It seemed as though the leaf would fall any minute now. ऐसा लग रहा है ये पत्ता किसी भी पल गिर सकता है। बहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। इस चीज को बहरमैन ने भी देखा और उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कमरे में वो चले गए। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन ए फीबल वॉइस, शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। अगली अगली सुबह जब जॉन्सी नींद से जागती है, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन्सी गेट्स अप, जब वो अगली सुबह जागती है तो इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। फीबल यानी बहुत ही धीमे आवाज में और डरे हुए आवाज में उसने उसे कहा कि प्लीज ड्रॉ द कर्टेन्स, पर्दे को खींच दो। शी वाज आल्सो नर्वस बट शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी reluctantly। reluctantly का मतलब बिना इच्छा के, उसकी इच्छा नहीं हो रही थी कि वो पर्दे को खींचे।
मगर उसने खींचा। ओह, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. और वो देख और वो देखकर बहुत ही खुश होती है और वो कहती है, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। क्रीपर पे अभी भी एक पत्ता वैसे के वैसे ही है, वो गिरा नहीं है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, बहुत ही हरा और स्वस्थ। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स winds it did not fall। रात में काफी तूफानी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी ये पत्ता नहीं गिरा। I heard the wind last night, said Johnson. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. जॉन्सी कहती है, रात में मैंने भी सुना था और मुझे लगा था कि ये गिर जाएगा, लेकिन गिरा नहीं। आज तो पक्का गिर जाएगा और तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। सो उसको फिर से समझाती है, यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरने वाले। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना है। What would happen to me if you die? कभी तुमने सोचा है तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। वो थोड़ा मुस्कुराती है, फिर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. हर एक घंटे के बाद वो पत्ते को देखती है और देखती है कि पत्ता ज्यों का त्यों वैसे ही है। ऐसा लगता है जैसे पत्ता जो है उस पेड़ से चिपक गया है, क्रीपर से चिपक गया है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम में फिर से तूफान चलता है, लेकिन लीफ ज्यों का त्यों गिरता नहीं है। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। जॉन्सी काफी देर तक उस पत्ते को देखते रहती है, उसके बाद वो स्यू को कॉल करती है। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. अब उसको अपने आप पे थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो बहुत ही बुरी बच्ची है, बुरी लड़की है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी दोस्त ने उसका इतना ख्याल रखा, लेकिन उसने बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया। She had been depressed and gloomy. बस वो दुखी और उदास रहती थी। The last leaf has shown him how wicked she The last leaf has shown her how weak she had been. ये अंतिम पत्ते ने उसे बताया है कि वो कितनी दुष्ट हो गई, उसे दूसरों का कोई केयर नहीं। She had realized that it is a sin to want to die. और उसने ये भी एहसास कर लिया कि मरने की इच्छा करना भी एक पाप ही है। किसी भी इंसान को मरने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने उसको यहाँ पे कुछ वर्क करने के लिए भेजा है। God has sent us to do some work. There is a particular reason behind our birth or our arrival on this earth, and it is our duty to complete all that. If we are not doing it, it means we are ignoring the instruction of God. We are trying to disrespect our God. So Johnsy has understood it. Sue is very happy and she hugged Johnsy, वो उसको गले लगा लेती। Then she gave her lots of hot soup and a mirror also. फिर उसको गर्म सूप पिलाती है और फिर आईना देती है उसको देखने के लिए। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी अब पहले की तरह अपने बालों को संवारती है और मुस्कुराती। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। दोपहर के बाद डॉक्टर आते हैं और वो जॉन्सी को एग्जामिन करते हैं और सू को बताते हैं कि अब स्थिति अच्छी है, अब जॉन्सी जो है वो जीना चाहती है, अब दवा भी काम करे। एंड ही सेज दैट ही इज कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर वेरी सून नाउ। नाउ ही वांटेड टू गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरमान। अब वो जा रहे हैं और नीचे में बहरमान से मिलना चाहते। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि उसको भी निमोनिया हो गया। बट द डॉक्टर वॉज अफ्रेड बिकॉज देयर वॉज नो होप फॉर हिम। ही वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड पर्सन। वो कहते हैं कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि वो काफी ओल्ड भी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग Sue came and sat on Johnson's bed. Taking Johnson's hand in hers, she said that she has something to tell her. अगली सुबह सू जो है जॉन्सी के बेड पर आकर बैठती है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेती है और कहती है
वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो कहती है, मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया। बहरमान की मृत्यु हो गई निमोनिया की वजह से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। 2 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। द फर्स्ट डे द janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. और पाया गया कि उनके जूते उनके कपड़े सब भीगे हुए थे, यानी कि उस तूफानी रात में वो बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed। और उनके बेड के पास में एक लैडर यानी कि सीढ़ी और एक लालटेन भी मिली। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder। और लैडर के पास में ही पेंटिंग करने वाले कुछ ब्रश, ग्रीन येलो कलर पेंट उन वहां पे पाए गए। जॉन सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो। उस विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ। उस आइवी लीफ को देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। तुमने गौर किया है क्या, तुम्हें आश्चर्य नहीं होता जब हवा चलती है तो ये पत्ता हिलता भी नहीं है। दैट इज बहरमान्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। और ये बहरमान का मास्टरपीस है। Because Bahman knew very well that this matter had set in the mind of Jhansi that she would die just with the fall of the last leaf. That is why he painted an artificial leaf over there. And Jhansi could not know about that. But doing all that, he sacrificed his own life. But his dream was true, as he wanted to create a masterpiece that must be remembered even after his death. तो he was successful in that। उसमें वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। और इस तरह से द स्टोरी इज कंप्लीटेड है। Now you people tell me, did you understand the story? Any confusion, any question from your side? Did you like the story? स्टोरी पसंद आई? ठीक है, कहीं कुछ पूछना हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। If there is any question, any doubt, any query from your side, that is welcome. Does anyone want to ask something regarding the story? The last leaf? No any query, no any question?